Life is not in our hand. Beginning and the end. To certain extent it is, by eating healthy, by exercising, by healthy choices we can extend our life. But again, at certain point it is not in our hand, no matter what. No matter how medically we can put them in ICU or do very intense, take care, still we cannot sustain the life, because life at certain point is not in our hand. Same thing happens when some couple try and try and try and they cannot have baby. No matter what, कितना IVF करा ले, कुछ करा ले, उनके हाथ में, क्योंकि लाइफ की जो बिगिनिंग है, एंड है, वो हमारे हाथ में है, पर एक एक्सटेंट तक, एक लिमिट तक। जैसे आप यात्रा कर रहे थे ना, कहाँ पर, एयर में जब यात्रा करते हैं, you can demand certain things, water, juice, and certain other drinks which you like, and food, but you cannot demand everything. Can you demand masala dosa? They say what is in our menu we can give you. So that sort of flexibility is our life. We can get certain things, but we cannot go beyond that. Like in human capacity, can you ask God to give me the wings and I can fly? Possibility नहीं है. उसके लिए ये लाइफ छोड़नी पड़ेगी, बर्ड्स की लाइफ लेनी पड़ेगी. Again, we can only wish, because everything is not in our hand. And who has that control? Who has that control, Mata? God. God. And why do we believe in God? Anji beta, why do we believe in God? Do we believe in God? आपको तो नाम ही भगवान का है, मान लो. तो आपको बिलीव ना भी करना पड़े तो करना पड़ेगा. लेकिन in reality, traditionally you have been given this knowledge and the tradition that God exists, is it right? But have you felt him or her? I don't know. Have you experienced? No. I think you did. Anastasia. Have you experienced the God? Of course, no. It is not automatically. It is not automatically. But have you? But I think you have. All you're doing is you're not recognizing that experience. It's just like in any cuisine you have eaten something, but you don't know the exactly name. You know, when in North India, halwa is called halwa, and somewhere it calls shira. In Gujarat, I think it's called shira. And if some Gujarati people never been to Delhi or somewhere where they call it halwa, and we offer them and say, "Do you want a halwa?" No, I don't know what it is. Say, no, you know that. You experience that. And as soon as someone says, "No, it is shira," they say, "Oh, okay." Same thing. If I say everybody in this room have experienced the God, and actually you experience on daily basis. Now I tell you why and how. When you do the right thing, thinking, do you feel proud? Or if you do something silly, naughty, do you feel fear? Yeah. Shame, a little shame, a discouraged feeling. उसको कहते हैं भय, शंका, लज्जा, fear, doubt, and shame. When these three feelings comes, and you want to do that thing, and you want to say something, and then someone or something inside you just telling you, no, that happens. Have you done something wrong in your life? Yeah. A few times, Yeah. every day, Maybe. many times, a day. Not sure. Okay. So we have that experience that whenever we do the right thing or wrong thing, we experience the fear, doubt, and shame. On the other hand, I will ask you this in the end, because I want you to remember this. Anji. So when we do something wrong, we feel fear, doubt, and shame. But when we do the right thing, we feel courage, we feel connected, and we feel pride. Feel good. Courage and connected. So
because CCP, courage, connected, and pride. And when you feel pride, who gives you that pride inside you? And who gives you shame if you do the wrong thing? Nobody know what you have done. And thinking level, what I'm thinking about Madhav, can anybody tell? No. So whatever I'm thinking right and wrong about you, it's only me who is thinking. Then who is making me fearful, shameful, and doubtful? Or if I have a good heart for you, and I'm thinking very positive about you, and I'm saying something, before I say, whatever I'm thinking is within me. And at that level, if something is making me feel pride, it means some energy is inside me who is guiding me. Is it true? So when that energy is guiding you, जब वो शक्ति आपके अंदर आपको support करती है, that is your interaction to that Almighty God. Now, tell me, have you experienced that? Yeah. Do you experience on regular basis? Mm-hmm. So do you talk to the God everywhere? Probably. Probably. And now next time when that feeling comes, just take a pause and remember me. Not me as a person, but remember what I said. And then say, okay, yes, what Panditji was saying, I think I'm feeling very good about it. Now tell me one thing more, everybody who's younger than me, that who has the capacity to make you feel pride? The right karma, isn't it? Mm-hmm. If you want to make yourself courageous, connected, and pride, where are you going to start? What is in your hand? By thinking right, by saying right, by doing right. The moment you start thinking right, saying right, and doing right, you start feeling pride and courageous, isn't it? So who gonna have the क्या कहते हैं उसको, control on your feeling, your own action. Yourself. So don't go anywhere else and say, make me feel good. It is in your hand. Start saying something lovely to your mom or dad or your siblings or someone who you know. Just go and tell them you are looking very good today. And you know, gratefulness. Me and my daughters, जब हम कार में बैठते हैं स्कूल की तरफ, तो उनका रूटीन बना हुआ मैंने उनको बना था कि बेटा 3 gratitudes, 3 gratefulness every day. And एक दिन मैं भूल जाऊंगा तो वह छोटे वाली जो बेटी होगी कि आपने आज वो नहीं किया, तो I would stop at school at least and they say okay start. तो कभी कभी तो उनके हार्ट से निकल के आता है बहुत अच्छे से, कभी कभी वो ऐसा करते हैं जैसे हम कहते हैं कभी कभी तो हम बड़ा अच्छे से खाना बनाते हैं, आज अच्छे से खाना खिलाऊंगी सबको, कभी कभी कहते हैं ब्रेड पीस खा लो, सैंडविच खा लो, खिचड़ी खा लो, सेम थिंग हैपेंस इन आवर स्पिरिचुअलिटी एज वेल. Sometimes we are very connected. So can I ask you or request you to practice this every day when you go to school or before you sleep or after waking up? Just sit down with yourself and count 3 gratefulness. And just say thank you life energy that you have given me, and then start feeling good about it. The gratefulness gives you the confidence because then you remember what is positive in your life. Gratitude about your mother, your father, your house, your well-being, your good body, you know. Tell me how many things are there to be grateful for. And you start that counting, and which means you are positive about it. Then you will start doing something good out of that. And the people who are grateful, the people who win in their life. So remember that, gratefulness. And that is what we are doing today. When we pray in front of God or invoke the energy within us by mantras, what we are doing, we are feeling grateful about it. And also when we are grateful, then the courage comes, the pride comes, the confidence comes, and we say thank you God for this day. And today we are sitting here to finish with this grief. कि उनके जाने से हमारी लाइफ में कुछ तो void होता है, कुछ तो कमी आती है.
फिर उनके प्रति जो ग्रेटिट्यूड है, उनके प्रति जो हमारी जो थैंकफुलनेस है, वो निकल के आनी चाहिए। तो इसलिए एट द एंड ऑफ दिस आई विल रिक्वेस्ट यू टू से फ्यू वर्ड्स अबाउट योर मदर इन लॉ, ठीक है? और आपकी मम्मी है ना? हाँ, मेरी अच्छा, मम्मी। अच्छा। तो आप अपनी माता जी के बारे में और अगर कोई और भी बोलना चाहे तो कम से कम आप दो को जरूर बोलना है, थोड़ा सा, दो शब्द। आई जस्ट वांट यू टू जस्ट एक्सप्रेस समथिंग। That's right. ठीक है? तो आइए ईश्वर को याद करते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि ये सब लाइफ और डेथ हमारे हाथ में नहीं है, ईश्वर के हाथ में है। तो इसका मतलब पैदा होने से पहले और पैदा होने के बाद किसके हाथ में है? हम ईश्वर के हाथ में हैं। तो किससे प्रार्थना करें कि उनकी आत्मा को शांति देना, और सिर्फ शांति नहीं कर देना, रेस्ट नहीं दिलवाना उनको। ये जो रेस्ट इन पीस वाला मामला है ना, ये उनका है जो दफना देते हैं और कहते हैं तुम बस रेस्ट करते रहो। हमारे यहाँ कहते हैं उस आत्मा की, दिवंगत आत्मा की सद्गति प्राप्त हो। सदगति कहते हैं। सद्गति का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो आज ये जर्नी समाप्त हो गई, अब अगली जर्नी पे उनको सद्गति मिले, ईश्वर आपका सानिध्य मिले, आपका आशीर्वाद मिले कि उस आत्मा ने हमारे जीवन में जो रोल अदा किया है उसके प्रति धन्यवाद। अब उसकी अगली यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो। और मंत्र भी यही कहते हैं, मंत्र भी जो मैं बोलूंगा उसमें यही जर्नी की बात की है कि यहाँ से दूसरी जर्नी में आना आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। वो कहते हैं सूर्य में जाना होता है, चंद्रमा में जाना होता है, वायु में जाना होता है, ऐसे कई जगह पर जाकर रिवाइटलाइज होकर फिर दूसरा जन्म प्राप्त करना, कंसीव होना किसी माता पिता के यहाँ पर, फिर 9 महीने उनके पेट में रहना और फिर बाहर निकल के आना। माँ को लगता है ना, हम कहते हैं ना, माँ जो है बड़ी मेहनत करती है, माँ से ज्यादा बच्चा मेहनत करता है बेचारा। 9 महीने उल्टे पानी में लटके रहना कोई आसान बात है? वो भी कितनी मेहनत करके आ रहा है ना? तो हम उनकी यात्रा हो शुभ, सदगति हो, इसकी मंगल कामना के साथ हम आज की बात करते हैं। आप कुछ कह रहे हैं? ये बोलते हैं जो रेस्ट इन पीस, तो मेरे को ऐसे लगता है कि इसलिए बोलते हैं कि भाई आत्मा को दोबारा से जन्म ना लेना पड़े। नहीं, उसमें आत्मा को तो दोबारा जन्म नहीं लेती, आत्मा तो अजर अमर है। हाँ जी, मतलब शरीर किसी और धारण ना शरीर करे। के बीच में नहीं जाए। हाँ, और जन्म नहीं होना चाहिए दोबारा से। ये ऐसा, पर ये भाव यहाँ नहीं है। आपकी भावना है मुक्ति के लिए, मुक्ति के आप उसको अच्छी जगह ले जा रहे हो उस बात को, लेकिन जो मुख्य रूप से कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि रेस्ट इन पीस। अच्छा, वो इसीलिए बोलते हैं। तो इसका मतलब क्योंकि उनके धर्म के मुताबिक रेस्ट इन पीस नहीं हाँ, है। क्योंकि उनकी मान्यता ये है कि ग्रेव में जाकर वहीं पड़े रहो, और जब कयामत का दिन आएगा, द डे ऑफ जजमेंट, क्रिश्चियंस में डे ऑफ जजमेंट मानते हैं, मुसलमानों में कयामत का दिन मानते हैं। तो ये मानते हैं कि जब डे ऑफ जजमेंट आएगा तब ईश्वर आपको, जो खुदा है या ईश्वर है, वो आपको वहां से उठाकर जन्नत या जहन्नुम में जगह तब तक आप रेस्ट इन पीस। तो हम क्या कह सकते हैं? सदगति मिले, आत्मा को सदगति मिले। सदगति में इसको दोबारा से जन्म नहीं लेना। सदगति में दोनों बातें आ जाती हैं। अच्छा, सदगति में ये होता है कि आप देखिए, आपको वो प्रार्थना करनी चाहिए जो संभव है ना? अब आत्मा के लिए संभव 2 बातें होती हैं, या तो वो किसी शरीर में जन्म ले, या फिर वो मुक्ति प्राप्त कर ले, परमात्मा को प्राप्त कर ले। दोनों चीजें आपके हाथ में नहीं है, वो उनके कर्मों के आधार पर है। माता जी ने जैसे कर्म किए, उनको अपने कर्मों के अनुसार या तो मोक्ष मिलेगा या फिर किसी योनि में जन्म मिलेगा। और मेरा मानना है कि जो धर्म कर्म करते हैं उनको कम से कम मनुष्य की योनि तो मिलती है, क्योंकि मनुष्य के लक्षण तो पुनर्जन्म किस आधार में मिलता है? इस आधार में मिलता है कि आपने मुख्य रूप से इस जीवन में क्या किया है। अगर तो कहते हैं कि आपने केवल कुत्ते की तरह भोगा ही है, बोला ही हो, ऐसा तो नहीं किया, तो इसका मतलब वो योनि नहीं मिलेगी। पशुवत योनिया काम किया है तो पशु की योनि मिलेगी। लेकिन मुख्य रूप से मैं ये मानता हूं कि हमारे भारतीय लोगों में जो धर्म कर्म करते हैं उनको मनुष्य योनि संभवतः मिलेगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य ही धर्म कर सकता है। अब धर्म में पूजा पाठ को नहीं कह रहा हूं सिर्फ। जब आप एक अच्छे परिवार में
शिक्षा देते हैं बच्चों को, अपने कर्तव्य निभाते हैं, ठीक है। और थोड़े से क्या नाम है, मनुष्यों वाले काम करते हैं। मनुष्यों वाले काम कौन से होते हैं? वो कहते हैं आहार, 4 चीजें, आहार, निद्रा, मैथुन और भय। ये 4 चीजें जो है वो पशुओं में और इंसानों में बराबर है, लेकिन एक विशेष है मनुष्यों में। देखिए जो पशु होता है वो भी क्या नाम है, खाता पीता है ना, वो भी रिजनरेट करता है, वो भी भय करता है, वो भी नींद करता है, ठीक है, उसको भी सोना होता है। मनुष्य भी ये काम करता है, भोगने की होनी। तो कहते हैं कि मनुष्य में विशेष क्या है, तो कहते धर्मो हितेशो, मनुष्य में जो धर्म है वो विशेष है। और धर्म क्या होता है? धर्म ये होता है कि आप अपने जीवन में आपको जो कर्म, आप जिस योग्य हो, आपने योग्यता प्राप्त की डॉक्टर बनने की, अभी ये बात चल रही थी ना, उन्होंने बड़ा अच्छे डॉक्टर हैं, उन्होंने सेव किया, ये उनका धर्म है। हमारे यहाँ पूजा पद्धति को धर्म नहीं मानते। हमारे यहाँ आपका जो कर्तव्य कर्म निश्चित हो गया है या आपने ले लिया है, उस पे आप अडिग होकर कर्म करते रहो। तो आप कर रहे हो ना, अभी आपने माता का धर्म निभा रहे हो, यहाँ पे निभा रहे हो ना, और यहाँ आप अपने पुत्र का धर्म निभा रहे हो, कर्मयोगी। तो ये कर्म प्रधान योनि है। इस कर्म प्रधान योनि में अगर आप धर्म का काम करोगे, पुण्य का काम करोगे, तो फिर अच्छी योनि में जाना आपका निश्चित है। तो मुख्य बात क्या है कि आत्मा को सद्गति मिले, ताकि जो भी उनको योनि ईश्वर की न्याय व्यवस्था में मिलनी है वो आराम से मिले और वो अपने मार्ग को अच्छे से तय कर पाए। यही हमारा बनता है, ठीक है। अगर उस भाव से आप रेस्ट इन पीस कह रहे हैं तो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो भाव वहां पर हुए तो, ठीक है। चलिए आइए अब उस परम पिता परमात्मा के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे और फिर आज ये आरंभ कर देंगे। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला, भगवन सभी की बुद्धि को वेद मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी हाथ जोड़ लीजिए, ईश्वर की हम स्तुति कर रहे हैं इन मंत्रों से। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि
परासुव यद्भद्रं तन्नासुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम यात्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम य प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्रा या जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम् स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशा नास्त्रितीये धामन्नधैरयन्त अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तुति प्रार्थनोपासना मंत्रः। संकल्प करेंगे। ओम ओम आवसो आपसो सदने सदने सीधा हीरे मैं बोलता हूँ ओम सीदामी बोले अहम अहम अद्य अद्य विशेष विशेष पूजा पूजा करम कर्म करणाय करणाय भवंतम भवन्तं वृणे विणे छोड़ ओम मृतो अस्मि। चलिए आप लोग थोड़ा सा पानी लीजिए, आप लीजिए और मैं आपको देता हूँ। चलिए मंत्र के बाद लीजिए ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। बेटा सीधे हाथ में राइट हैंड। ओम सत्यम यशा श्रीर्मय श्रीशयताम स्वाहा। अब इसको धो लीजिए, हाथ को धो लीजिए, वॉश योर हैंड। अब लेफ्ट में थोड़ा सा पानी ले लीजिए और राइट की मिडिल 2 फिंगर्स, है ना। तो बेटा ये क्या है, हमारी सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स इंडेक्स फिंगर, तो हम इसको टच नहीं करते हैं। और ये हमारी क्या है, इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। तो नो सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स, नो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स। तो क्या होना चाहिए लाइफ में, बैलेंस। तो ये बैलेंस है। और क्या होना चाहिए, निष्कामता। निष्कामता का अर्थ होता है कि फल के लिए मरे मत जाओ, है ना, फल के लिए डेस्परेट मत हो जाओ। ये होता है निष्कामता। अदरवाइज मोटिवेशन तो चाहिए, फल तो चाहिए, हमें सांसारिक फल नहीं चाहिए, खुशी चाहिए। तो खुशी के लिए कर्म करना चाहिए। घर का काम क्यों करें हम, वाई डू वी टेक द प्लेट्स बैक टू द सिंक, करते हैं, करवाते हो, अच्छा बच्चों से करवाया करो, है ना, सबसे सहयोग लीजिए। तो क्यों करते हैं हम, क्योंकि इसमें खुशी मिलती है। हेल्प करना अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को,
ये निष्कामता है। इसमें कोई कामना नहीं है, इसमें कोई पैसा इन्वॉल्व नहीं है, इसमें कोई हिसाब किताब इन्वॉल्व नहीं है ना। देखते हैं ना पति पत्नी में, मित्रों में, परिवारों में, कहाँ हिसाब किताब तो नहीं रखते ना कि मैंने आपके यहाँ 1 घंटा सहयोग करवाया था। करते हैं जी, भाभी मैंने 2 घंटे काम करवाया था, आपको मेरे को 2 घंटे काम करवाना है। नहीं, यहाँ पे निष्कामता है कि बस खुशी मिलती है, आपके साथ खड़े हो जाते हैं, उनको भी खुशी मिलती है कि आप सभी आप यहाँ पर आए। इसको कहते हैं निष्कामता। तो निष्कामता के लिए ये, इसलिए शादी की अंगूठी किसमें पहनते हैं आप? इसमें। क्या कहते हैं ये? क्योंकि अब मैं आपसे बंध गई हूँ, आप मेरे से बंध गए हो, तो अब निष्काम हूँ। आप ना मेरा हिसाब आपके पास, ना आपका मेरे पास, बस दोनों खुशी के लिए एक दूसरे के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, तो निष्कामता और संतुलन लाइफ में होने चाहिए, इसलिए इन 2 उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए लेफ्ट में पानी लीजिए और middle 2 fingers we will touch the body limbs and pray for the well-being of all our body organs. Om Vangmasyastu, Om Nasorme Prano Astu, Om Akshanorme Chakshurastu, Om Karneorme Shrotramastu, Om Bahvorme Balamastu, Om Urvorma Ojo Astu, ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षोरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवां स्वस्तनूभिर्वशेमहि देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति स्वस्ति ॐ स्वस्ति ॐ स्वस्ति। अब हम जल प्रसिंचन हो गया है। कपूर साहब कहाँ गए? जी इसको चलाइए। ओम भूर्भुवः स्वः। बस उसका लगे रहिए बस, हटाइए मत। हाँ चलिए। जी पकड़िए दोनों। ओम भूर्भुवः स्वदेवरिव भूम्ना पृथिवीव वरिण्णा, तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी, पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजाग्रही, त्वमिष्टापूर्ते संसृजे थामयञ्च, अस्मिन् सरस्ते यद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। एक समीधा उठाइए, दोनों में एक। ओम एक ले लीजिए। ओम अयंत इद्म आत्मा जात वेदस्ते निधस्वर्धस्व चेदवर्धया, चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे, नानाद्येन समेधाय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्वाहा। ओम समेधाग्निं दुवसत घृतैर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना, सुसमिद्धाय शोचिषे कृतं तीव्रं जुहोतनाग्नये जातवेदसे इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम।
एक और लीजिए। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छायाविष्ठ्य इदमग्नये अंगिरिसे इदं नमः। ऐसे चलो अब हाथ को ऐसे कीजिए और चम्मच को ऐसे कीजिए, ऐसे और सुहा करने पर बोलने पर आपको आहुति देनी है, ठीक है। एक हाथ से काम, एक हाथ को यूं कर दीजिए। चलिए ओम, पानी को इधर दे दीजिए, बड़े वाले को गिर जाएगा ऐसे। बहुत बढ़िया। सभी लोग स्वाहा बोलें। स्वाहा बोलने से देखिए जैसे भी आप अच्छा बोलते हैं ना, तो सबसे पहले ये अच्छाई कहाँ अनुभव होती है। मैं आपसे प्यार से बोलूंगा तो सबसे पहला प्यार कहाँ पे आएगा? मेरे को आएगा। जब स्वाहा बोलते हैं समर्पण आता है। और समर्पण क्यों जरूरी होता है? अगर किसान समर्पण ना करे और बीज भूमि में ना डाले तो गेहूं होगी, अनाज होगा? नहीं होगा। जब तक देंगे नहीं तो मिलेगा कैसे? और देवताओं का काम होता है देना। देखिए देवताओं का काम क्या होता है? देना। देवताओं को जब आप देते हो तो ये समझ लो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे किसान बीजता है ना, जैसे आप शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं ना, अब शेयर खरीदोगे नहीं तो डिविडेंड कैसे मिलेंगे? क्यों जी? तो ऐसे ही जब आप स्वाहा नहीं बोलेंगे तो स्वाहा के बिना आपको लाभ कैसे मिलेगा? ऐसा तो आपको बीजना है। बीजना मतलब आपको स्वाहा करके देवताओं को प्रसन्न करना है, ताकि देवता आपके ऊपर फिर सुख की वर्षा करे। तो स्वाहा बोलिए। ओम अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेने धस्वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधाय इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ओम अयंत इद्मात्मा जातवेदस्तेने धस्वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधाय इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ओम अयंत इद्मात्मा जातवेदस्तेने धस्वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधाय इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ओम अयंत इद्मात्मा जातवेदस्तेने धस्वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधाय इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। ओम अयंत इद्मात्मा जातवेदस्तेने धस्वर्धस्व चेद्धवर्धया चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नानाद्येन समेधाय इदमग्नये जातवेदसे इदं न मम। आप इसको रख दीजिए। हम इसके चारों तरफ पानी का छिड़काव करेंगे। इसको कहते हैं जल फसेचन। तो पहला आपको यहाँ से यहाँ लाइन बनानी है। पानी आपके पास है ही। ओहो मदितेनुमन्यस्व। आपको यहाँ से यहाँ बनानी है, यहाँ से हाँ बना दीजिए आप। ओम अदितेनुमन्यस्व। आपको वहां से वहां बनानी है। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब आपको दीपक से स्टार्ट करना है, यहाँ तक लेके आना है, आपको फिर पूरा करना है। ओम देव सवितः प्रसूवयजम प्रसूवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः केतपूके तन्नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वरतु। माधव दो मैसेज है यहाँ पे, है ना? दीपक रखा है ना? दीपक का मतलब क्या है? प्रकाश, नॉलेज। यू नो व्हेन वी से लाइट, सो वी एनलाइटन मी। तो लाइट का प्रयोग कहाँ होता है? नॉलेज के लिए। एनलाइटन मी, तो हम क्या कहते हैं? हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाएंगे। एक बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर प्रार्थना है हमारे यहाँ। असतो माँ तमसो माँ मृत्युर्मा अमृतामृतम। दूसरा क्या है? तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो मतलब तमस से प्रकाश की ओर, डार्कनेस टू लाइट। When you go to school, you are traveling that journey on regular basis. When you are going to school every day, why? Because you're opening up
the light bulbs in your mind every day. Every day you learn new things. Same thing you all. You learn every day new things, which means असतो मा सद्गमय. ऐसे ही ये अंधकार से प्रकाश करता है. ठीक है? चल. अच्छा. मतलब यहाँ पीछे डोर है, थोड़ा सा खोल दें। खोल दीजिए, खोल दीजिए. नहीं ठंड नहीं लगेगी, यहाँ से कर नहीं, ऐसा इसकी बजाय अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, वहाँ की खिड़कियाँ खोल दीजिए. हाँ वहाँ की भी खोल देते हैं। चलो यहाँ कर दीजिए. चलिए, आपको गर्म और सर्द हो जाएगा. देखो, चलिए चम्मच उठाइए, उनको भी आने दीजिए. आई बैठी. अब पहली आहुति आपको यहाँ से यहाँ देनी है. हाँ जी। चम्मच उठाइए, जैसे आपने थोड़ा था. बिल्कुल ऐसे. ओम अग्नये स्वाहा. इदम अग्नये इदम स्वाहा सभी बोले. अब इस पे ओम सोमाय स्वाहा. इदम सोमाय इदम नमः. ओ अब बीच में ओम प्रजापतये स्वाहा. इदम प्रजापतये इदम नमः. ओम इंद्राय स्वाहा. इदम इंद्राय इदम नमः. ओम. अच्छा यहाँ पे आ जाइए, कोई आ जाए आगे, कोई आ जाए. बेटा आप आगे आ जाओ. और सामग्री की आहुति देनी है. अगेन ऐसे बेटा, इसको ऐसे पिंच करना है 2 उंगलियों से मुट्ठी से, और ऐसे आहुति देनी है. ठीक है? स्वाहा पे चम्मच, ये पानी आगे कर दीजिए, पानी गिरना जाए. चलिए हाँ जी, आहुति देनी है, आहुति देनी है आपको. इतनी देनी है. जब सुहा बोले तभी देनी है ना. चलिए, आपको घी से देनी है. अच्छा। आपको देनी है, आपको सामग्री से देनी है. चलिए. ओम सूर्यो ज्योत ज्योति सूर्य थोड़ा भर भर के दीजिए. ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च. ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति. ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुर्वृषसेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेतु. ओम भूरग्नये प्राणाय इदमग्नये प्राणाय इदं नमः. ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा. इदं वायवे पानाय इदं नमः. ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा. इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः. ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा. इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः. ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा. ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधायाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा. ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यदभद्रं तन्नहासुव स्वाहा. ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नमः विधेम स्वाहा. ओम अग्निर्ज्योत ज्योतिरग्नि स्वाहा. बेटा थोड़ा भर के दो, भर के दो. ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा. ओम स्वाहा स्वाहा. ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्याजुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा. ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा. इदमग्नये प्राणाय इदं नमः. ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा. इदं वायवे पानाय इदं नमः. ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा. इदमादित्याय व्यानाय इदं नमः. ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः स्वाहा. इदमग्निवायवादित्येभ्यः प्राणापान व्यानेभ्यः इदं नमः. ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा. ओम यां मेधां देवगणः पितरश्चोपासते
तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु। ॐ विश्वानि देव सवित दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मौक्तिं विधेम। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अच्छा ये और आ जाइए। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ तीन आहुति तो सभी दे है ना। तो आज ये अर्जुन जी को नहीं। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। स्वाहा। यहाँ पे और कोई चर्चा ना करें। हाँ जी, अभी और कोई चर्चा ना करें। मंत्र पाठ में वो शक्ति है कि एक माहौल क्रिएट करा जाता है जिससे हमको विवेक मिले, जिससे हमें भी शांति मिले और हमारी भावनाएं आगे तक पहुंचे। मैं अभी आ रहा था पार्क में, तो मैं चला गया दूर और मुझे ध्यान नहीं रहा कि कार को मैं लॉक करना भूल गया। सुनिए, तो अब वो बड़ी दूर था, लेकिन मैंने एक वो पढ़ा था कि अगर आप यहाँ पर लगाकर उसको दबाएं तो आपकी
की जो कार का रिमोट है वो अच्छे से काम कर सकता है, एंड इट डिड। नहीं, आप करके देखिए, आप कभी भी किसी भी कार को एक डिस्टेंस तक जहां पर उसकी सीमा है, कैपेसिटी है, उसके थोड़ा सा 10 मीटर और दूर जाके अपने यहाँ पे लगा के देखिए, वो काम करेगा। मैंने ये कई बार टेस्ट किया है और मैंने आज भी बाई चांस नहीं हुआ। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि आपकी जो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी है, दैट मैटर्स, दैट एक्सटेंड। तो आप सोच के देखिए, अगर सभी लोग यहाँ पर एक ही माइंड की फ्रीक्वेंसी पे हों तो क्या ऊर्जा क्रिएट होगी, क्या एनर्जी क्रिएट होगी। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट आपसे, निवेदन जो है, विनम्रता रिक्वेस्ट क्या रहती है कि सभी लोग एक ही मंत्र का पाठ करें। मंत्र नहीं आते तो कम से कम स्वाहा बोलें और कम से कम और कोई चर्चा ना करें। उससे क्या होगा, आपकी जो ब्रेन की लेंथ है, वेव लेंथ है, और यहाँ की जो वेव लेंथ है वो मैच करेगी। इससे इसका जो गरिमा है वो बढ़ेगी और साथ में आपको जो लाभ मिलेगा वो और मिलेगा। तो दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए सभी लोग मंत्र पाठ करें और स्वाहा बोले। और ये महामृत्युंजय मंत्र बहुत सुंदर मंत्र है। ये अक्सर लोग मृत्यु पे पढ़ते हैं, जबकि ये जीवन के लिए है। जीवन के लिए क्यों है? जीवन के लिए वो कहते हैं त्रयंबकम यजामहे, हे त्रयंबक ईश्वर, मैं तेरी उपासना करता हूं। क्यों उपासना करता हूं? कि जैसे खरबूजा या कोई भी फल जो अपनी बेल से जुड़ा हुआ होता है, वो जब तक जुड़ा रहता है वो रस लेता रहता है, और जब वो पक जाता है तो उसके अंदर 2-3 गुण आते हैं। एक तो आता है कि उसका सुगंधी आ जाती है। तो आपने देखा ना, जो आम अगर पका हुआ हो तो उसकी सुगंधी अलग आती है दूर से। आप आयल के पास से जा रहे हैं, आपको लगता है वाह। और दूसरा, वो मीठा काफी हो जाता है। और तीसरी जो उसकी विशेषता है, जो हमको नहीं पता क्योंकि हम फार्मिंग नहीं करते हैं, हम नेचुरल से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि हम तो सीधा कोल से ले आते हैं ना, वहां से मिल जाते हैं, या रोड साइड वेंडर से ले आते हैं। लेकिन आप अगर खेती में जाएं तो पूछें तो जो पका हुआ फल होता है उसको आपको तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, वो डाल से ये मंत्र क्या कहता है कि हे ईश्वर, मैं तुझसे ऐसे जुड़ा रहूं जैसे खरबूजे का, करकटी फल कहते हैं उसको संस्कृत में, वो जो रोक मेलन है वो जैसे अपनी डाल से जुड़ा रहता है और उससे रस लेता रहता है। तब क्या करता है, वो अपने आप को भर लेता है, रस से भर लेता है। कब? तो क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि वो सुगंधित हो जाता है, मीठा हो जाता है और डाल से अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही मैं जीवन भर तुझसे जुड़ा रहूं, तेरे नाम का जाप करता रहूं, तेरा नाम का जाप करता रहूं, और क्या करूं, फिर मैं तुझसे रस लेता रहूं और फिर जीवन से ऐसे ही छूट जाऊं सहजता से, जैसे खरबूजा अपने डाल से छूट जाता है। ये है पका हुआ फल। जब जीवन से सुगंधी आने लगती है, मिठास आने लगती है, जब सारे हार्मोन्स शांत हो जाते हैं, उल्टे सीधे सब गुस्सा शांत हो जाता है, जीवन एक ऐसी प्रौढ़ अवस्था में आ जाता है जब उसको लगता है कि आप जो लोग, बच्चे लोग बड़ी उछल कूद कर रहे हो ना, है ना, बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सपीरियंस, ये भाग वो भाग, एक सीमा के बाद लगता है हमें पता है जीवन का सार, हमें पता है। तो वहां पे देखना, उन बुजुर्गों के जीवन में सुगंधी भी आती है, मिठास भी आती है, उनकी वाणी। इसलिए पोते और दादी का रिलेशन क्यों अच्छा हो जाता है, क्योंकि दादा दादी को पता होता है कि पोते को ये चाहिए, पोती को ये चाहिए। हाँ, इसलिए अभी मम्मी पापा तो बेचारे अपने हीट ऑफ द मोमेंट में कमाना भी है, ये भी करना, वो भी करना है, तो वो कच्चे फल हैं, है ना। दादा दादी परदादी वो पके हुए फल होते हैं, उनको पता होता है बच्चों को कैसे डील करना है, क्या देना है उनको, क्योंकि उनके जीवन में सुगंधी भी बढ़ जाती है और मिठास बढ़ जाती है, और वो जीवन को ऐसे सहजता से छोड़ देते हैं जैसे पका हुआ फल छोड़ देता है। और वो कह के जाते हैं, मेरी खुद की दादी, मैंने देखा है, वो 2 दिन पहले उन्होंने सबको बुलाया, सब आओ फोटो खिंचवाओ, सब फोटो खिंचवा के सब कुछ ऐसे जैसे पूरी तैयारी करके लगेज के में एयरपोर्ट पे जाते हैं ना, जैसे बिल्कुल वो तैयारी करके। तो मेरे को जब लगा कि ये जीवन का सुखद अनुभव है कि व्यक्ति अपने जीवन के सारे कार्यों को करते हुए, सारी इच्छाओं को पूरा करते हुए, अपने सबको आशीर्वाद देते हुए अपने जीवन से प्रयाण कर जाना और फिर अगली गति को प्राप्त करना अपने अगले। तो यही प्रार्थना हम कर रहे हैं कि जैसे ये माता जी, हमारी माता जी हैं, एक पके हुए फल की तरह इस जीवन से गई हैं, सुगंधी भी छोड़ के गई हैं,
अपने कर्मों की, अपने आशीर्वाद की, है ना। और दूसरी, हमारे जीवन में मिठास भी छोड़ के गई हैं और अपने पके हुए फल की तरह हमसे जीवन से विदा लिया है। हम भी ऐसे ही जीवन को जिए। चलिए और बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। चलिए, और कोई रह गए हो तो आगे आ जाइए। हमारी माता आइए। आखिरी बार 3 बार कर रहे हैं, जिनको आपको करना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब 13 मंत्र और हैं जो उनके प्रयाण के लिए जरूरी है, तो मैं बोलता हूँ। उनमें सब में ये कहा है कि पहला मंत्र है, बहुत खूबसूरत मंत्र है। क्या कहते हैं? वायु अनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम। ये शरीर की 3 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्वों, 5 बेसिक एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथ। ये ग्रॉस से सटल इन 5 तत्वों से बना है। जब आप छोटे से थे ना माधव, आपको पता है, बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे जब आप पैदा हुए थे, तो इतने थे, 2.5 किलो के, 2.5 किलो के होंगे। और आप कितने किलो के? अभी पता नहीं आपको? हमें नहीं पता। 40, 50, 55, यस। तो अब ये कैसे एक्यूमुलेट किया? खा खाना खा के, पराठे बना के। तो ऐसे सबका शरीर बढ़ता है। छोटा सा हम कंसीव जब होते हैं तो मटर के दाने की तरह होते हैं। आपको कभी अंदाजा है आप कभी मटर के दाने की तरह थे? कभी पता आपको? आपका जो शरीर था कभी वो इतना छोटा था, आपका दिल जो इतना छोटा था। उसके बाद क्या हुआ? आपको पता है? हाँ, हाँ, इनको तो पता ही है, हम सबको भी पता है क्योंकि हम सभी माता पिता बन चुके हैं। तो आप देखिए, उस अवस्था से हम अपने शरीर को बढ़ाते हैं 5 तत्वों से, वायु अनिलम अमृतम अथेदम। लेकिन वो कहते हैं कि ये 5 तत्व फिर भस्म हो जाने वाले हैं, है ना। हमने किया, दाह किया, तो कहते हैं कि अब जो ये एक्यूमुलेशन है फिर डिसमेंटल करते हैं हम उस शरीर को, इधर भी बरी और भी क्रिमिनेशन में वो जल्दी अच्छे से वातावरण में वापस चला जाता है ना। चलिए, तो अब ये इस दौरान हम कौन हैं? ये तो शरीर था जो छोटा था, बड़ा हुआ, लेकिन हम कौन है जो लाइफ एनर्जी के रूप में थ्रॉब करते हैं, इसके अंदर सस्टेन करते हैं। तो वो कहते हैं इस आत्मा को की खुराक क्या है? आपकी खुराक तो मलाई कोफ्ता है, आपकी खुराक तो पराठा है, आपकी खुराक तो डोसा है, लेकिन इस आत्मा की खुराक क्या है? तो दूसरी लाइन में कहता है ओम क्रतो स्मर क्लिगे स्मर क्लिगे स्मर, कि आप सोचते हुए, बोलते हुए और करते हुए, कर्म करते हुए किसको याद करो? ओम को याद करो, प्रभु को नाम याद करो। तो जब आप ये याद करोगे तो कैसा हो जाएगा? आपकी जैसे गाड़ी ड्राइव करते हो ना, अभी सीखी गाड़ी कार चलानी, जब सीखते हो ना
तो अभी तो आप शायद लर्निंग पे या पी पे होगे, Yeah, hair license. पूरा लाइसेंस। Greenhouse. तो आपने जब सीखा ना, तो क्या होता है कि दोनों हाथ, अभी तो आपके दोनों हाथ ऐसे हैं, अभी थोड़े से जब जवान हो जाओगे, जब साइड में कोई नहीं बैठेगा तो एक हाथ से चला है ना, थोड़ी सी स्पीड 60 की 65 हो जाएगी, है ना, होती है ना? लेकिन जैसे ये पता चल जाए पुलिस आसपास है, डज इट इंप्रूव अवर ड्राइविंग स्किल्स अगेन? यस इट डज। Just the essence of police around us, just the reminding, this message goes in our head, and all of a sudden our body gesture becomes very, very alert कि हमारे को पुलिस आसपास है और हमें ड्राइविंग स्किल्स को अच्छे से देखना है। ऐसे ही ये कहता है मंत्र कि जब आप ईश्वर को याद करते हो, सोचते हुए, बोलते हुए और कर्म करते हुए, मनसा वाचा कर्मणा, अगर अब आप ईश्वर को याद करोगे कि मैं ऐसी बात तो नहीं कर रहा जो ईश्वर को सुनाई दे को बुरा लगेगा, मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा जो ईश्वर को सुनाई दे और बुरा लगेगा, तो जब आप ईश्वर को याद करते हुए बोलोगे, ईश्वर को याद करते हुए सोचोगे, तो जैसे वहां पे ड्राइविंग स्किल इंप्रूव हुई है, यहाँ पर आपकी लाइफ स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी। और जब आपकी लाइफ स्किल इंप्रूव हो जाएगी तो क्या करोगे? तब आप अपनी आत्मा को खुराक दोगे, तब आप प्रसन्न हो जाओगे। जो मैंने पहली बात कही कि जब आप अच्छा बोलते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, तो क्या होता है? कनेक्शन, करेज एंड प्राइड, CCP। बस इसी को जीवन कहते हैं, बाकी तो भस्म हो जाने वाला है। आइए इस मंत्र से आहुति देते हैं। ओम वायु अनिलम अमृतम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतो स्मर क्लिबे स्मर कृतम स्मर स्वाहा। अब दूसरे मंत्र में कहता है मृत्यु सबको आनी है, चाहे 2 पैर वाले हो चाहे 4 पैर वाले, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए, अपने जीवन को अच्छे से जीना चाहिए। ओम मृत्युरुष्येति पदाम मृत्युरुष्येति दुष्पदाम तस्मात् त्वं मृत्योर गोपतेरुद्भरामि समा विभे स्वाहा। अब सद्गति हेतु आत्मा को सद्गति मिले तो क्या कहा? ओम समुद्रम गच्छ स्वाहा, अंतरिक्षम गच्छ स्वाहा, देवम सवितारम गच्छ स्वाहा, यज्ञम गच्छ स्वाहा, दिवम ते धूमो गच्छतु स्वज्योति पृथ्वीं भस्मना प्रणः स्वाहा। और हम प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो आत्मा हमारे बीच में से गई है, वो जहाँ भी विदय ऋण रहित, यानी जिसे हम कहते हैं ना मराठी में बिंदास जीवन, निर्भयता पूर्वक वो जीवन जिए, हमारी उनकी हमारे ईश्वर से प्रार्थना है। ओम अन्नृणा अस्मिन् ऋणा परस्मिन् तृतीये लोके अन्नृणा स्याम, ये देवयाना पितृयाणाश्च लोका सर्वान् पथो अन्नृणा आक्षियेम स्वाहा। ओम अंतकाय मृतवे नमः प्राणापानाय तेरमन्तां यहायमस्तु पुरुषा सह सुना सूर्यस्य भागे मृतस्य लोके स्वाहा। ओम अस्मै मृत्यु अधिब्रूहिमं दयस्बोधितो यमेतु अरिष्टा सर्वां सुषज्रसा हस्तहानेन आत्मना भुजमचुनुतां स्वाहा। ओम माते मनस्तत्रगान्मा व्योमा जीवेभ्यः प्रमदो मानो गापित्रीं विश्वे देवाभिरक्षन्तु त्वेह स्वाहा। अब ये जो आखिरी मंत्र मैं इस आहुति के लिए बोल रहा हूँ, फिर पूर्ण आहुति करेंगे। ये कहता है कि देखिए जो जीवन में घटनाएं घटती हैं उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, पर हमारा जीवन रुकना नहीं चाहिए। अब हमारा आगे का जो जीवन है, ये कहा है कि सब परिवार मिलकर ये निर्णय लें कि अब आज का जो दिन है ये अंतिम शोक का दिवस था, अब आगे से हम उनके जीवन को याद करते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए, उनके प्रति ग्रेटिट्यूड रखते हुए अपने जीवन को उनकी अच्छाइयों से प्रेरित रखेंगे। We will inspire from her right actions and we will live life and remembering her on regular basis gratitude. पंडित जी वो तो कहते थे पराठे खाओ खूब, तो खाओ। ओम कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषत् शतकं समा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा। चलिए अब हम पूर्ण आहुति करेंगे। सामग्री 2 मिनट के लिए रोक दीजिए, थोड़ा सा उतार दीजिए क्योंकि काफी हो गई है, तो 3 बार में इसको आहुति को खत्म नहीं करना, कम कर दीजिए इसको। हाँ ये 6 डिवाइड, पर इसको ऐसे करके दीजिए। चलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। अब सामग्री को रोक दीजिए थोड़ी देर के लिए। अब हम घी की आहुति देंगे। घी की आहुति पूर्ण आहुति के लिए है, तो पहली आहुति फिर आपको ऐसे देनी है घी की, पहले यहाँ से यहाँ तक। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः, नहीं ऐसे अब इधर से। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम अब दो बीच में। ओम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम सुरादित्याय स्वाहा इदम आदित्याय इदम नमः। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदम अग्निवायवादितेभ्यः इदम नमः। अब ये प्रायश्चित आहुति है कि उनके जीवन में हमसे कुछ गलती रह गई हो, या आज की जो कार्यवाही है हमने की है उसमें कुछ गलती रह गई हो, उसके लिए हमको क्षमा मांगनी आपकी सेहत के लिए जरूरी है। सामने वाला करे ना करे, हो ना हो, वो अलग बात है, लेकिन अपने जीवन में अगर आपको ऐसा लगता हो भूल चूक माफ, हमसे कुछ गलती रह गई हो, जाते हुए को हम यही कहते हैं। जब हम किसी को कहते हैं कि हमारे यहाँ आप रहे, अच्छा रहा, आप आए, लेकिन अब जा रहे हो, तो अगर मुझसे कोई कहने सुनने में कुछ गड़बड़ी रह गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। तो बस ये मिससेलेनियस जो याद भी नहीं है और जो याद है उन सबको याद करते हुए प्रायश्चित आहुति, और मीठे से दी जाती है क्योंकि मिठास से ही आप प्रायश्चित करोगे, है ना। बिकॉज स्टिफ अपॉलजी इज अनदर इंसल्ट। चलो ओम यदस्य कर्मणोत्यरीरिचम यदवान्योनमिहाकरम् अग्निष्ट सृष्टिकृत विद्या सर्वं सृष्टं सुहतं करोतु मे अग्नये सृष्टिकृते सुहताहुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समर्धायत्रे सर्वान्ना कामान्त समर्धाय स्वाहा इदम अग्नये सृष्टिकृते इदम नमः। और प्रायश्चित करने के बाद फिर मौन हो जाना चाहिए, है ना। अक्सर सोरी के बाद हम मौन नहीं होते, सोरी करने के बाद हम क्या होते हैं, अपनी फिर कमेंट्री शुरू कर देते हैं। बट इफ लगाकर नहीं करनी चाहिए, चुप हो जाना चाहिए, क्योंकि मौन में ये शक्ति है कि आपकी सॉरी को सामने वाला एक्सेप्ट कर। ओम स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। चलिए अब सामग्री सारी डाल दीजिए 3 बार में। ओम सब डाल दी। हाँ 3 बार में सब समाप्त कर देंगे। ये पूर्ण आहुति है, और उस परम पिता परमात्मा जो कि स्वयं पूर्ण है, बाकी सब अपूर्ण है, एक ईश्वर ही है जो पूर्ण है, उस पूर्ण परमात्मा से पूर्णता की कामना कर रहे हैं। चलिए ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। दस आहुति गृहस्थी के 5 कर्तव्य होते हैं, समझिए इस बात। वो 5 कर्तव्य कौन से हैं? पहला ब्रह्मयज्ञ, रोज ईश्वर को याद करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जीवन उसने दिया है और जीवन लेता भी वही है, और जीवन भर हमें प्रेरणा देता भी वही है। तो इसलिए ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। तो सुबह और शाम सुबह उठकर जाने से पहले 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, आप 5 मिनट कम सो जाइए, या बेड पर उठते ही कर लीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन 5 से 10 मिनट तक आप रोज मेडिटेशन जरूर करें। जैसे आपका फोन चार्ज पे होता है ना, तो जब चार्ज खत्म हो जाता है तो क्या करते हो? चार्जर पे लगाते हो ना, अदरवाइज आप रिचार्ज करते हो, है ना, रिचार्ज करते हो ना। तो ऐसे ही जब आप ईश्वर से जुड़ते हो तो आप रिचार्ज हो जाते हो। तो बैठना चाहिए, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ कहते हैं उसको। दूसरा है देव यज्ञ, अग्नि। वैसे तो देवताओं का पूजन करना चाहिए, अलग अलग देवताओं का, लेकिन अग्नि देवता की विशेषता यह है कि जब आप इस पे फोकस करते हो तो क्या होता है, ये आपको उठना सिखाती है। फायर कभी डाउनवर्ड नहीं जाती। और ये ध्यान करना, साइकोलॉजी का रूल है, क्या रूल है
कि आप जिस चीज पे फोकस करते हो उसके गुण आपके अंदर आते हैं। आप पानी पे फोकस कीजिए, शीतलता आएगी। अग्नि पे फोकस कीजिए तो आपको प्रेरणा मिलेगी, उत्साह मिलेगा, आपका डिप्रेशन दूर होगा। इसलिए हमारे हिंदू व्यवस्था में क्या है, दीपक जलाना। शाम को सुबह दीपक क्यों जलाते हैं? क्योंकि ये हमारे को जब हम इसके साथ बैठते हैं, 5 मिनट बैठते हैं, ये छोटी सी ज्योति भी हमारे छोटे छोटे डिप्रेशन को, तो ये तो अगर हवन कर पाओ तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन अगर नहीं कर पाओ तो कम से कम रोज सुबह और शाम एक ब्रह्मयज्ञ, दूसरा देवयज्ञ, दीपक जलाकर उसके सामने मेडिटेशन करना। तीसरा पितृयज्ञ। बड़े बूढ़े जितने भी हैं, आपसे जितने भी बड़े हैं, हमारे घरों में व्यवस्था थी कि मेरे बड़े भाई अगर 2 साल भी बड़े हैं तो मुझे पैर छूने ही छूने। तो ये था, मैं सबसे छोटा था तो सबके पैर मैं ही छूता था, परंतु मेरे से जो बड़े थे वो भी सबके पैर छूते थे। तो व्यवस्था ये रही कि बड़ों की हमेशा सेवा करनी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और अपने घर में खासतौर से जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं, उनको फोन पर या अगर वो घर पे हैं तो उनको हमेशा बैठाकर उनसे बात करना, उनको समय देना, क्योंकि उनको समय देते हो तो उनका आशीर्वाद आपके लिए आता है। इसको कहते हैं पितृयज्ञ। पितृ में माता पिता दोनों आते हैं, पिता नहीं, पितृ माने जो पितर हैं हमारे, उनकी सेवा करना, उनके साथ बैठना, उससे आपका यज्ञ होता है, ईश्वर प्रसन्न होता है उससे। चौथा यज्ञ है बलिवैश्वदेव यज्ञ। अपने से छोटे हैं, कौन से छोटे हैं? कुत्ता, बिल्ली, चींटी, इन सबको कुछ ना कुछ खिलाना, ये बलिवैश्वदेव यज्ञ जो मैं अभी करवाने जा रहा हूँ। और 5वां यज्ञ है जो अतिथि यज्ञ, यानी विद्वानों को बुलाकर उनसे पूजा करवाना, उपदेश लेना। जो ब्राह्मण आपको सिर्फ मंत्र पाठ कर जाता है वो अपना काम पूरा नहीं कर रहा है। उसका काम है मंत्र पाठ तो करे लेकिन साथ में उसका अर्थ बताकर आपको कुछ दे कर जाए। इसलिए मैंने आपको क्या कहा था कि CCP ये याद रखना, और अगली बार जब मिलेंगे तो मैं पूछूंगा, पक्का? चलो, तो ये ध्यान रखना कि वो कुछ ना कुछ हमारे घरों में, मेरे घर में मुझे पता है हर दूसरे चौथे दिन, क्योंकि मंदिर के पास ही घर था, तो जब भी कोई होता, पिताजी मंदिर के सेक्रेटरी थे, तो जो भी विद्वान आते थे, आचार्य लोग आते थे, उनको ले आते थे घर में, खाना खिलाते थे। तो हमारी ड्यूटी थी तो उनका हाथ पैर धुलवाना, उनको खाना, गरम गरम रोटी देना उनको। दिल्ली तो सेवा करने से क्या होता है, विद्वानों की सेवा करने से क्या होता है, उनकी अच्छी चीजें आपको मिलती है। तो ये है अतिथि यज्ञ। ठीक है, ये 5 कर्तव्य हैं। अब इसकी आहुति देंगे। चलिए कोई बात नहीं, अब 10 आहुतियां और देंगे। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वंतरी स्वाहा, ओम कुर्वै स्वाहा, ओम अनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सजाव पृथ्वीभ्यां स्वाहा, ओम स्विष्ट कृते स्वाहा। बहुत बढ़िया। अब आप सब सीधे बैठ जाइए। अंतिम गान है, इसको मंगल गान कहते हैं। मंगल गान पूर्ण आहुति के बाद ईश्वर से आपके मंगल की कामना कीजिए। हलवा रह गया आपका? ले आइए। पर छोटी सी कटोरी में ले आना बस। हलवा अच्छा, मुझे नहीं पता था कि हलवा बनना है, इसलिए आपको नहीं हलवा है, बनाया हुआ। कोई बात। चलिए, जब तक आता है तब तक हम मंगल कार्य कर लेते हैं। आप सभी लोग सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए। Close your eyes and meditate upon the God within you. Observe your breath as it comes in, as it goes out. अब मंगल का ओम भूर्भुवः स्वः कयानश्चित्र भुवा दूति सदा वृथा सखा कया शचेष्ठया वृता। ओम भूर्भुवः स्वः
कस्त्वा सत्यो मदानां महिष्ठो मत्सदन्धसा क्रीडाचिदारुदेवसु ॐ भूर्भुवः स्वः अभीषुणा सखीनां वीता जरित्रीणां शतं भवास्य योतये ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ भूर्भुवः स्वः थोड़ा सा डाल दीजिए बहुत छोटा सा बहुत छोटा ओम स्वाहा अब आपको कुछ बोलना है थोड़ा सा तो नमस्ते सबको, नमस्कार। मैंने वैसे पहले भी कैसा नहीं जानते हैं, पहले भी मारा के कमीशन वाले दिन मैंने उनके बारे में कुछ बोला था। तो काफ़ी सारे उनमें खासियतें थी, पर दो तीन चीज़ें जो है मेरे को टच करती हैं ऑल माई लाइफ, और ऑल्सो आई फील इंस्पायर्ड कि भी मैं भी उनको फॉलो करूं। ये है कि भी वो सबको बहुत प्यार करती थी, दिल से प्यार करती थी। वो कभी कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते थे क्या मेरा रिश्ता है उससे, मेरा रियल है या कोई दूसरा संबंध है, लेकिन वो सबका बराबर प्यार देती थी। और दूसरा वो बहुत कंपैशनेट थी, बहुत मतलब दया थी उनके दिल में। तो जो भी ज़रूरतमंद होता था, हम मिडिल क्लास फैमिली में थे, जयपुर में रहते थे, जयपुर में मेरा बचपन बीता है। तो वहाँ पे चाहे कोई घर में मांगने वाला आए, जैसे आते हैं लोग, या फिर रिक्शा लेके कहीं जाना हो, तो कभी वो रिक्शा वाले से वो बार्गेनिंग नहीं करते थे कि भी कितना लगेगा। और जो वो मांगता था जर्नी के अंदर 15-20 मिनट की जर्नी होती थी, आधे घंटे की जर्नी, तो उससे मतलब 1-2 रुपये ज़्यादा ही देते थे। उस समय की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब 1950-60s में जब की जर्नी होती थी। और वो सबको बहुत रिस्पेक्ट देती थी, और एक तरह से बहुत सेवा भाव था उनमें। कोई भी मतलब बीमार हो उसको जाके मिलना है, वो अपनी तबीयत नहीं देखती थी। यहाँ भी रहते हुए कई बार वो इंडिया गई हैं, जब उनकी मतलब हार्ट ऑपरेशन के बाद रिकवरी हुई थी, लेकिन उनकी एक बड़ी भाभी जो थी वो बीमार चल रही थी उन दोनों। तो उनकी एक वो बहुत पक्का डिटर्मिनेशन था कि मेरे को जाके उनके साथ टाइम बिताना है, उनके साथ मेरे को 2-3 महीने उनकी सेवा करनी है। बहुत उनमें डिटर्मिनेशन था सेवा करनी। यहाँ भी अनीता के पेरेंट्स, उनकी अनीता की मदर, उनका नाम दर्शो था, तो हफ्ता गुजरता था, कहते मेरे को दर्शो को मिलने जाना है। ये एपिंग में रहते हैं, अब तो गुजर गए हैं अनीता के दोनों पेरेंट्स, पर उनमें बहुत ये थी कि मैं जाके मिलूँ, चाहे किसी की तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा हेल्प भी नहीं कर सकेंगे, लेकिन मेरे को जाके थोड़ा टाइम गुजारना है। तो कुछ एक उनकी खासियतें थी जो कि बहुत इंस्पायरिंग लगती है मुझे। और वो काफ़ी मतलब मेहनती थी, और मेरे मतलब सिंगल पेरेंट थी, मेरे को मतलब उन्होंने ही पाला है बचपन से। आई लॉस्ट माई फादर एट वेरी अर्ली एज, तो उस समय के हिसाब से उन्होंने मतलब
पढ़ाई की काफ़ी, और नर्सिंग का उन्होंने प्रोफेशन फॉलो किया इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद। जी। तो बहुत मतलब डिटर्मिन थी और मेहनती थी, और सबके लिए बहुत दिल मन में प्यार भाव था और सेवा भाव था। बहुत बढ़िया। संभव। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या बोलूं मैं, इनके साथ 43 साल शादी हो जाएगी हमारी लंबी की। शुरुआत लगता है दिन की होती ही राम राम से। बस ये होता था सुबह राम राम और रात को मतलब राम राम। बाकी तो साथ में ही थी, और मतलब सारे जो गुण हैं इन्होंने बताए वो थे। और पेशेंस हो, कुछ भी हो। तो एक पोइट्री है, पोएम है, वो मैं मतलब पढ़ सकती हूँ। वो लिखी है किसी ने कि ममता जैसे प्रताप की तरफ से। हूँ सोचता मैं दिन भर है किसने तुझे बनाया, रूप तेरा इतना खूबसूरत जहाँ से कहीं ना पाया, ढूंढा जहाँ में सारे तुझसा दिख ना पाया, की तुलना जब भी किसी से निराला तुझे ही धरती पर पाया, थी दोष से रहित तू ममता की थी मूरत, है कहीं नहीं जहाँ से तेरी जैसी मोहक सूरत, थी कितनी नरमी तेरे हाथों में, थी उतनी ही गर्मी तेरे दिल में, जहाँ जहाँ पर मैं था जाता साया तेरा वहीं पर पाता। जैसे प्रताप बोले, तेरे आते ही चमन में आ जाती बहार, छू लेती दिल को मेरे, लगता झूमने मेरा संसार, पाँव जहाँ भी लड़खड़ाया हाथ तूने आगे बढ़ाया, रोम रोम में मेरी अम्मा लाड प्यार तेरा समाया, हर दिन जिंदगी का साथ तेरे जो बिताया, है दिन चुका याद बनकर वो लौट फिर न आया, बता दे बस इतना मुझे वापस कहाँ तुझे लाऊं, करूँ याद में जितना तुझे भावुक उतना ही हो जाऊं, हर दिन बचपन का सामने मेरे आ जाए, याद अभी भी है वह लोरी जो हर रात तू मुझे सुनाए, हूँ तरस रहा मैं कब से सुनने को तेरे मधुर आवाज, हो सके तो फिर लौटा दे ममता की वे सौगात। तो मतलब मेरे को भी लगता है कि 45 साल मतलब अपने माँ बाप से भी ज़्यादा यही थी माँ। तो शब्द नहीं रहते। कोई और कुछ कहना चाहें तो? कोई और बोलना चाहे? कोई भी कुछ कहना चाहे? मैं तो समझा ही रहता शुरू से। तो ये चाह रहा कि ऐसी अवस्था में सबके ऐसे भाव है कि और लव Thank you. जी जी that will be a repetitive बहुत आपका प्यार से जो खाना खिलाती थी, I can- पराठे क्या प्यार से पराठे खिलाती थी, क्या उनका खाना, उनको खाने के लिए नहीं, उनके प्यार जो उसमें है उसकी वजह से डेफिनेटली बहुत कितना प्यार सबसे दिल से जब खाना बना के देती। खड़ा भी नहीं हुआ जाता था उनसे, इनकी नीज में इतनी प्रॉब्लम थी पर फिर भी मजा। किसी टाइम लगता था कि असल में देखिए कि जीवन में आपके पास माधव, मैं बार बार आपको ले रहा हूँ क्योंकि ये लोग तो अभी समझे बैठे हैं, इनका तो रिवीजन हो रहा है, सबसे छोटे हैं ना यहाँ और आप सबसे छोटे हैं, और मेरा हमेशा ध्यान जो है यंग्स में ज़्यादा होता है क्योंकि यू आर ग्रोइंग एंड यू नीड ऑल दैट इंफॉर्मेशन राइट बिफोर you grown up, because you know when you know about certain place beforehand, you have looked at in GPS, you have looked at on Google Map कैसा दिखता है, कैसा लगता है, it's very comfortable when you reach there. The fear of unknown is not there because you already know something. The packages of the कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लें, ये जो seedling form में maybe certain things would not fructified now or would not applicable now, but it should be handy if and when the situation happens and you got an information. I give you example of my life कि मुझे वेद में एक आज्ञा है कि जुआ मत खेलो, मेहनत करो, छोटा सा मंत्र है, और हमारे पिताजी हमारे माताजी ने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि अगर कोई भी चीज ऐसी जो उनको लगे कि ये गलत रास्ते पे है तो वो अच्छे से करते थे सेवा पान। क्यों? क्योंकि उनको था कि मैंने बिगड़ने नहीं देना, और ये उनकी सबसे सुंदर सौगात थी। हमारे को कभी गिफ्ट नहीं मिला बर्थडे पे,
कभी नहीं मिला, और इसका कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि वो जो गिफ्ट थे वो विभिन्न विभिन्न रूपों में, कभी मिठास से, कभी प्यार से, कभी डंडे से, कभी पिटाई से, कभी इससे, कभी उससे, वो हमको रास्ते पे ले आना, यही उनकी बहुत बड़ी गिफ्ट थी। तो ये जो कैप्सूल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप जो भी माता पिता देते हैं वो आप सुन लेते हो सकता है उस समय आपको ठीक ना लगे, एप्लीकेबल ना लगे, बट यू विल रिमेम्बर दीज थिंग्स। तो ये माता पिता का ये लाइफ में रोल होता है। हम अक्सर समझ भी नहीं पाते कि हमारे माता पिता ने कैसे काम किया है। तो शास्त्र में एक आता है कि जैसे कुम्हार होता है, द वन हु मेक दैट क्ले पॉट, द राउंड क्ले पॉट, है ना, तो वो क्या करते हैं कि वो एक हाथ अंदर रखता है और एक हाथ बाहर से थपाकी मारता है। He beat from the outside, but he never take away the hand inside. So now you feel when he is giving the shape to this pot, he is putting one hand underneath. That is exactly what parent does to you. वो आपके जीवन में जितना मर्जी गुस्सा करें, परंतु अंदर उनके उस गुस्से में भी प्यार होता है, भर भर के प्यार होता है, और वो प्यार होता है ड्यूटी ऑफ केयर। ड्यूटी ऑफ केयर क्या है कि मुझको तुझको सीधा बनाना है, मुझे तुझे लाइफ में वो देना है, वो लाइफ स्किल्स देनी है कि तू कहीं भी रहे, कभी भी मात नहीं खाए, कभी भी लाइफ में झुके नहीं, डिगे नहीं, गिरे नहीं, गलत रास्ते पे नहीं जाए। तो ये हमारी माँ का, हमारे पिता का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। यू गो एंड चेक दोज नेबरहुड where parents are not doing their job because they are druggies, लो सोशो इकोनॉमी में एक बार जाके देखो। मैं I do not discriminate between high profile people and the low profile people. No, I don't. But if you go in a very low social skills people, जहाँ पे पेरेंट्स का पता नहीं है, जहाँ पे रिलेशन बड़े वेग से हैं, जहाँ पे बड़े ब्लर से हैं, और वहाँ पे वो बच्चों को छोड़ देते हैं, कुछ भी करो, स्कूल जाओ कि ना जाओ। मेरी वाइफ टीचर हैं, वो एक बारी धारुक में ये माउंट रूट के एक सबक के पास में, लवली पीपल लिव देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, बट देयर आर सर्टेन पीपल केम, और वो उससे पूछा कि बेटा तुमने कल क्या कहा, तो उसने कहा कि कल मेरे पापा को पुलिस पकड़ के ले गई। नाउ शी सेड कि अब मैं क्या बोलूं उसको, क्या प्रेरणा मिलेगी उसको, क्या रोल मॉडलिंग है उसके लिए। तो आपको प्राउड होना चाहिए कि आपके पेरेंट्स एक सही रास्ते पे चलते हुए आपको सही रास्ते पे चला रहे हैं। एक होता है कि हम अपनी लाइफ में कुछ भी हो लेकिन आपको कह रहे हैं कि नहीं बेटा अच्छे निकल जाओ, नहीं, ये तपस्या है, ये बहुत बड़ी तपस्या है अपने जीवन की। जैसे आपने कहा सिंगल मदर होते हुए, और इंडिया में तो बड़ा बुरा हाल होता है क्योंकि सोशल सिक्योरिटीज नहीं है वहाँ पे, और अक्सर ऐसे जीवन में जो सिंगल मदर्स होती हैं, कभी विडो हो जाती हैं या सेपरेटेड हो जाती हैं, उनके लिए लाइफ इजी नहीं है। आज की तो फिर भी थोड़ा ठीक ठाक है, पर उस समय में तो और ज्यादा भयंकर था, और ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं, ऐसा कोई सोशल वो नहीं, तो सेटअप नहीं, उसमें भी मेहनत करके पढ़ाना। तो ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है कि आप अपने इकोनॉमिकल आप अपने आप को सस्टेन करें, आप अपने जीवन को सस्टेन करें और अपने बच्चों को सही रास्ते पर ले जाके उनको उच्च शिक्षा दें। ये बहुत बड़ी तपस्या है। ये उससे भी ज्यादा बड़ी तपस्या है जब आप घर परिवार छोड़कर किसी जंगल में जाके ओम का नाम ध्यान करते हैं, क्योंकि वहां तो बड़ा आसान है, नथिंग इज देयर, नो, आपको कोई काम ही नहीं है, भक्त आके पैसा दे जाते हैं, आप खाना खा लेते हैं, भक्ति कर लेते हैं, वो भी अपना जीवन है, इस बात में उसको मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये बहुत बड़ा जीवन है जब एक माँ अपने बच्चे को सही रास्ते पे ले चलती है, और उसके बाद तो कहते हैं ना, एक लफ्ज मोहब्बत का बस इतना ही फसाना है, सिमटे तो दिले आशिक, पहले तो जमाना है। तो माता जी ऐसी थी, जैसे आपने बताया कि अपनों को भी प्यार कर सकते हो, करो, लेकिन उसी प्यार को अगर आप फैला दो तो जमाना है प्यार करने के लिए। और जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप स्वाहा बोलते हो तो आप देवताओं के सामने बीजते हो अपने शुभ कर्मों को। जब आहुति देते हो, हमारे यहाँ गुरु जी के यहाँ वहाँ पे रोहतक में भी है उनका आश्रम, और वहाँ पे भी है देहरादून में,
तो वो कहते थे अपनी सामग्री खुद लेके आओ, यज्ञ हम करेंगे, हवन करेंगे, लेकिन अपनी सामग्री कहते थे लेके आओ, नहीं तो ये 5 रुपए की या जो भी उनका मूल्य था वो दो। वो इसलिए देते थे कि ये तुम्हारा कर्म बनेगा। अगर सब कुछ आश्रम ही दे देगा तुमको तो फिर कैसे बात बनेगी। आप अपनी जेब से जब दान निकालोगे, अपने हाथ से जब आहुति दोगे, अब एक व्यक्ति कहे कि नहीं जी मैं पैसे दे देता हूँ, आहुति आप दे देगा, कहते नहीं हमें आपका पैसा नहीं चाहिए। तो जब आप बीजते हो, है ना, 100 ग्राम 1 किलो गेहूं बीजोगे तो आपको 100 किलो गेहूं वापस मिलेगी। और देवता इसी को कहते हैं जो जिसको आप 1 दो और वो आपको 100 वापस करे, यही देवता है। बच्चा जब आपके मुंह में आके कोई चीज दे देता है तो आप उसके सामने कितना प्यार उड़ेलते कि नहीं उड़ेलते। आपको बच्चे से क्या चाहिए, वो चीज चाहिए या उसका जेस्चर चाहिए, भाव, उसका भाव चाहिए, उसकी इंटेंशन चाहिए। जैसे ही वो अच्छे राइट इंटेंशन से आपको देने की कोशिश करता है, आपका दिल भाग भाग हो जाता है, आप उस पर सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो सोचो, मनुष्यों के देवता होने के बावजूद भी आप इतना करते हो, तो जो वास्तव में देवता हैं वो आपको आपकी आहुति के बाद कितना देंगे। इसलिए कहते हैं यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्मा, ये जो हवन है, इसलिए मैं हर पूजा में, चाहे वो सत्यनारायण की पूजा हो, गृह प्रवेश की पूजा हो, कई लोग कहते हैं कि हम हवन नहीं कर पाएंगे, मैं कहता चलो छोटा सा कर लो। वो मैं इसलिए कहता हूँ कि मुझे पता है कि उनका हित उसी में है। वैसे भी प्रार्थना कर सकते हो, वैसे भी, लेकिन यज्ञ करने से, हवन करने से आप जो वातावरण को शुद्ध करते हो और उसके बदले में आपको जो मनो सुख मिलता है आपके जीवन में, वो अद्भुत है, वो अद्भुत है। तो इसलिए ध्यान रखिए, जब आप स्वाहा बोलते हो और अपने जेब से कुछ पैसा निकाल के आहुति डालते हो, तो मनोमन आपका जो वो है ना, जिसे कहते हैं आप बीजते हो 1 किलो और मिलता है आपको 100 किलो। तो बस अब आप सोच के देखिए, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे पुण्य कर्मों में, उतने पुण्य आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, तो माता जी से अपना आशीर्वाद लेते हुए, उनकी सदगति की प्रार्थना करते हुए हमने इस कर्म को किया है। आप सबने ध्यान से सुना है। वीडियो फोटोज ले अच्छा, अब हम सब लोग शांति पाठ करेंगे। चलिए, अब सभी लोग हाथ जोड़कर शांति पाठ। इस शांति पाठ में हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सब शांत हैं, पृथ्वी भी शांत है, सूर्य भी शांत है, चंद्रमा भी शांत है, अपना काम कर रहा है। ऐसे ही हम भी अपने जीवन में शांत होते हुए सभी कर्मों को, पुण्य कर्मों को करते रहें। शांत का मतलब रुकना नहीं है, मरना नहीं है। शांत का मतलब है जो स्पीड आपको चाहिए। अगर आप 60 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हो ना, तो वह शांति से चला रहे हो, है ना। ऐसे ही अपने जीवन में शांति से, अब आपकी पढ़ाई की उम्र है, शांति से पढ़ो। 2 काम है आपके मुख्य रूप से, पढ़ो, खेलो, अपनी शारीरिक उन्नति करो और अपनी बौद्धिक उन्नति करो, है ना। ये मुख्य कर्तव्य है आप। लेकिन उसके साथ साथ 2 कर्तव्य आपके ये है कि अपने माता पिता की सेवा करो और ईश्वर को याद करो। ठीक है बेटा, चलो शांति पाठ। ओम देहु शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। इस ओम से हमारा क्या आता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शांति शांति शांति। ओम। कुछ क्षणों के लिए अपने बाकी सभी संबंधों से किनारा करते हुए उस सबसे मीठे संबंध की तरफ ध्यान करें। अपने आप को देखें, सबको देखते हुए
इतने व्यस्त हो चुके थे कि अपने आप को देखना ही भूल गए। चारों तरफ से बुद्धि को हटाते हुए सिर्फ अपने आप को देखने का अभ्यास करें कि मैं कौन हूँ। इस शरीर को चलाने वाली, हर संकल्प की रचना करने वाली, हर भावना को महसूस करने वाली मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। अपने आप को देखें। भ्रिकुटी के बीच अति सूक्ष्म चमकता हुआ सितारा, पॉइंट ऑफ लाइट shining in the center of the forehead, एनर्जी जो इस शरीर की मालिक है। ये मैं हूँ, मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरी अपनी नेचर है, शांति मेरा ही संस्कार है। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल चारों तरफ फैल रहे हैं। मैं आत्मा इस देह और देह की दुनिया से कुछ समय के लिए किनारा कर अपने घर की तरफ चलती हूँ। देखें अपने आप को, that point of light traveling upwards, ऊपर जा रहा है। इस सृष्टि को पार करते हुए अपने घर की तरफ मैं जा रही हूँ। उस चांद सितारों की दुनिया को पार करते हुए अपने घर में आत्मा पहुंची हूँ, जहाँ चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है। जस्ट पीस एवरीवेयर अराउंड मी। शांति धाम मुझ आत्मा का घर है। मैं आत्मा मीठे शिव बाबा जो मुझ आत्मा का पिता है, मुझ आत्मा की तरह ही वो भी एक प्रकाश का पुंज है, ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट। मैं आत्मा उनके सम्मुख आकर बैठ जाती हूँ। शिव बाबा जिनसे मैं हर संबंध जोड़ सकती हूँ, चाहे वो माता पिता का संबंध है, चाहे वो बच्चे या दोस्त का संबंध है, हर संबंध मैं शिव बाबा के साथ अनुभव कर सकती हूँ। शिव बाबा जो मुझे देते ही जाते हैं, मुझे भरपूर करते जाते हैं। इतना प्यार देते जो मैं खुद से प्यार करने लग जाती हूँ, जो अपने आप को पहचानना शुरू कर देती हूँ। अपने मन में जो भी बात हो, जो परेशान कर रही हो, इस दोस्त से कर सकते हैं, कहकर हल्के हो जाएंगे। शिव बाबा शांति का सागर है। जिस शांति को सारी दुनिया ढूंढ रही है, वो शांति का सागर मेरा पिता है। उस शांति की शक्ति को अपने अंदर भरते जाइए। भरकर वो शक्ति मुझ आत्मा से निकल सारी सृष्टि पर फैल रही है, सब आत्माओं तक पहुंच रही है जो शांति को ढूंढ रही है। अब मैं आत्मा धीरे धीरे पुनः इस दुनिया की तरफ आ रही हूँ। इस कर्म क्षेत्र पर अपने कॉस्ट्यूम में धीरे धीरे पुनः अपने स्थान पर आकर बैठ जाती हूँ, लेकिन इस स्मृति के साथ कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ और मैं किसकी हूँ।
ओम शांति।